Good afternoon, everybody. Good afternoon. I think there was some technical flaw. I hope everything is fine now. Good afternoon, Ria. Saurabh, good afternoon. Tashu, good afternoon. Jagdeep, good afternoon. Nilofer, good afternoon. Okay, now it's fine. Okay. Tina, good afternoon. Manpreet, good afternoon. Rubina, good afternoon. Pooja, good afternoon. Keshav, good afternoon. Sahiba, good afternoon. Yogesh, good afternoon. Yogesh, by the end of this year, probably. Abhishek, good afternoon. No, Ria, I never normally don't take lunches. Thank you. Rahul, good afternoon. Thank you for your flowers. Arifa, good afternoon. Priya, good afternoon. Kumar, good afternoon. Thank you. Thank you, Kumar. Thank you, beta. Janvi, good afternoon. Abhishek, good afternoon. Rohan, good afternoon. Yes. Priya, good afternoon. Thank you for your flowers. Amrit, good afternoon. Nutan, good afternoon. Paridhi, good afternoon. Rohit, good afternoon. Abhishek, good afternoon. Good afternoon, Ramesh. Yeah, Yogesh, we are starting the offline batch on 5th of June. Anil Khanna's Academy of Law and Unacademy, in collaboration, are starting the offline batch on 5th of June. Shraddha, good afternoon. Thank you, Tina. Thank you, beta. Thank you. God bless you. Yes, Paridhi. This was an overview of CRPC today. So that is why our overviews are always faster. Oh, so sweet of you, Abhishek. Thank you, beta. Thank you for your very kind words. अच्छा notification आ गया कि okay. Good afternoon, Manisha. Acha, okay. Yes, we are in collaboration. So now you know you'll get the best. Yes, thank you, Tashu. Roshan, good afternoon. Just waiting for students to join so that we start. We'll just wait for a few moments. Thank you, Tashu. Thank you, beta. Yogesh, I think Unacademy will be the best person to tell you about it. I guess you will have to, if you want to join the offline, you will have to re-enroll. Yes. Abhishek, just send Anil Khanna को message कर दो Telegram पे. It will reach me. So just message Anil Khanna. That's all. जो भी message है I will take it.
Good afternoon, Amit. Satakshi, good afternoon. Okay, I guess more or less students have joined. Good afternoon, Shikha. Thank you for your flowers. Revision. Well, Ria, start revising. Make your skeleton notes on every topic. Make a list of all the topics, major and minor topics. और उनको पढ़ के अपने माइंड से दोबारा लिखो. फिर कंसल्ट करो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 5 साल में और उनको उनके कंटेक्स्ट में देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. Akanksha, God bless you, beta. Oh, you were my student in the first batch. Wow, great. Welcome. Sangamitra, good afternoon. Rohit, good afternoon. मेंस के लिए नहीं, रोहन. Sana, good afternoon. चलिए, let's start. Students who join late can always refer to the recorded lectures. Prachi, good afternoon. Dishant, good afternoon. You know, today is a very important topic. Oh, how sweet, Keshav. Thank you, beta. God bless you. Just keep on working hard. You know, प्लस ग्रुप का लिंक मुझे बेटा आप अनिल खन्ना को मैसेज कर दो सिर्फ टेलीग्राम पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा. नॉर्मली कोई डेट रैंडम ही होती है रोहन. शुभांगी, गुड आफ्टरनून. ओके, फर्स्टली ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, all of you can achieve your dreams. Always the main point is that we lose our focus. Sometimes small failures make us lose heart. So always remember, please always be focused and definitely you will succeed. Good afternoon, PD. Samvedna, good afternoon. Harsh, good afternoon. So अगर आप focused रहते हो तो definitely you will achieve. And also remember, please, your knowledge is something which is your strength. जो आपकी एक wealth है, वो कभी भी आपको it will give you dividends. So keep on studying, keep on working hard, and definitely you will achieve your dreams. Rachna, good evening. हिरल, अनिल खन्ना सिर्फ उसको टेलीग्राम पे ढूंढो, you and you will get. Good afternoon, Akanksha. सृष्टि, good afternoon. So all students जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनसे तो मैं रेगुलर बात करता रहता हूँ. जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे अभी मेरे पास, so please remember, all of you can achieve your dreams. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक बार दो बार फेल हुए और तीसरी बार टॉप किए. So no reason for you to lose heart. And definitely, if you keep on working regularly and in a focused way, definitely you will achieve your dreams. Okay, Advocate P, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, but please remember मेरे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया हैं, साउथ इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इंग्लिश में भी बोलता हूँ, बट मैं हिंदी में भी उसका अनुवाद करके ही बताता हूँ. गुड आफ्टरनून रोशनी. ओके, नाउ यू नो मेरा जो अपना ऑफलाइन बैच है वो इन कोलैबोरेशन विद अन अकेडमी शुरू हो रहा है ऑन 5th of June. उसके अब एडमिशंस शुरू हो रहे हैं. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच, अभी आई थिंक अन अकेडमी विल हैव स्टार्ट इट्स एडवर्टाइजमेंट्स. उसमें एक अर्ली बर्ड ऑफर होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15,000 का फायदा है. सो वो अब शुरू के 100 बच्चों के करीब मिलता है. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, मस्ट नॉट वेट, देन यू मस्ट ज्वाइन. Thank you, Akanksha. Thank you, beta. Varsha, good afternoon. Okay, let's start the whole thing now. We are today on the topic of Achal. It is going to be Achal. Sorry, Achal. It's going to be Sector 17, Chandigarh. Chali, let's start our topic, which is a very important topic today.
Today's topic is temporary injunctions. Firstly, let's go to the background of temporary injunctions. पहला एस्पेक्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ट्रायल के टाइम पे दो तरह के प्रोसीडिंग्स होते हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स वो होते हैं जिनका असर सीधा जजमेंट पे होता है, जो जजमेंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर हम बात करें सीपीसी में, तो कमीशंस आर इंसिडेंटल प्रोविजन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि जो कुछ भी कमीशन जो भी रिकॉर्ड करता है वो आपका जजमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बेसिकली जजमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करती। नो एडवोकेट पी, बेटा मैं जयपुर नहीं आ पाऊंगा, यहीं करेंगे। ओके, प्लीज कंसंट्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार मेंस में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान देना। ना सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, जैसा कि मैंने बोला, वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जो जजमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करती। ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं? जब हम सेक्शन 94 में जाते हैं तो हमें सारी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, अरेस्ट, टेम्परेरी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड टेम्परेरी इंजंक्शंस, देन रिसीवर वगैरह। टेम्परेरी इंजंक्शंस एक पूरा ऑर्डर है, ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, सॉरी, ऑर्डर 39 के अंदर जब हम जाते हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक ही टेम्परेरी इंजंक्शंस का है। नेचुरली द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है एक प्रोहिबिशन, एक बैन, एक रेस्ट्रिक्शन। मैं, क्योंकि बहुत बार आता है व्हाट आर टेम्परेरी इंजंक्शंस, एग्जाम्स में आता है टॉपिक, सो ऑलवेज आई वुड लाइक टू कोट ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक की लॉ डिक्शनरी मैं कोट करना चाहूंगा। एन इंजंक्शन इज अ जुडिशियल रेमेडी prohibiting persons from doing a specified act called a restrictive injunction। यानी कि इंजंक्शन एक जुडिशियल रेमेडी है जो एक इंसान को मना करती है कि आप ये स्पेसिफाइड कार्य नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन, मत करो। ये क्या है? मत करो। और दूसरे टाइप की इंजंक्शन क्या होती है? और कमांडिंग देम टू अनडू सम रॉन्ग और इंजरी कॉल्ड अ मैंडेटरी इंजंक्शन। या फिर आपने एक काम कर दिया है जिससे दूसरे को इंजरी हुई है, उसको ठीक करो। सो इसीलिए याद रखना दो तरह के इंजंक्शन है। अगर मैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को कोट करूं, एक इंजंक्शन होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है, कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस, प्रोहिबिटिव इंजंक्शंस, और एक होता है जो कहता है ठीक करो, जो आपने गलत किया है जिससे नुकसान हो रहा है लोगों का, उसको अब ठीक करो, कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शंस। अब ये जो हमारा ऑर्डर 39 है, दिस डील्स विद बोथ रिस्ट्रिक्टिव एज वेल एज मैंडेटरी इंजंक्शंस, दोनों को डील करता है। अब इंजंक्शंस हमारे दो तरह के हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो इंजंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट इंजंक्शंस एंड टेम्परेरी इंजंक्शंस। जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो सब्जेक्ट मैटर है ऑर्डर 39 का, और जो परमानेंट इंजंक्शन है वो सब्जेक्ट मैटर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। सो याद रखना, हम यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन की। अगर हम परमानेंट इंजंक्शन की बात करें तो वो आता है सेक्शन 38 एंड 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, सीपीसी में जो हम इंजंक्शन मांग रहे हैं वो ड्यूरिंग द सूट मांग रहे हैं। जो हम सूट के बाद एज अ फाइनल रिलीफ मांग रहे हैं वो होता है परमानेंट इंजंक्शन। और जो हम सूट के टाइम पे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज जब तक सूट खत्म होगा तब तक जो डिक्री का फ्रूट है, जो मुझे उसका फायदा मिलना है, वही अगर खत्म हो जाए तो फिर डिक्री किस बात की दोगे आप मुझे? दिस इज वाई प्लीज रिमेंबर, टेम्परेरी इंजंक्शंस जो होते हैं
वो एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं। वो इनको हम इसीलिए कई बार टेम्पररी, इंटरिम या इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शंस भी कहते हैं। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, परपेचुअल इंजंक्शंस हमारे क्या होते हैं? परपेचुअल इंजंक्शंस होते हैं हमारा फाइनल रिलीफ। मेरा मेरा डिक्री ही परपेचुअल इंजंक्शन पे होता है कि इसको परमानेंटली रोक दो, ये परमानेंटली ठीक कर दो। बट जहां मैं टेम्पररीली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट मांग रहा हूं, उसको हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। सो इसका मतलब हो गया, टेम्पररी इंजंक्शन एज पर ऑर्डर 39 may be granted on an interlocutory application at any stage of the suit। किसी भी टाइम अब क्वेश्चन उठता है कि टेम्पररी इंजंक्शन आप कब मांग सकते हो? कभी भी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों मांगते हैं? व्हाई? द बेसिस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन इज, प्लीज रिमेंबर, जस्टिस, इक्विटी। सो जस्टिस और इक्विटी इसका बैक, कि अगर कल को हमने सूट के टाइम पे डिफेंडेंट ने चीज ही गायब कर दी, चीज ही बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, तो फिर डिक्री किस चीज पे लोगे? उसका फ्रूट्स ऑफ द डिक्री किस चीज पे लाओगे? इसीलिए ये चीज क्लियर की राजस्थान हाई कोर्ट ने अशोक कुमार वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर। ये जोधपुर का केस, ये राजस्थान का केस है, 1995 राजस्थान हाई कोर्ट, this is a divisional bench decision, that the basis of a temporary injunction is always equity, justice, good conscience। so जहां पे एक चीज याद रखना, एक बड़ी बेसिक चीज आती है। ओके रोहित, एक बड़ी बेसिक चीज आती है कि अगर, अब ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया कई बार, अगर मैं परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दे सकता, अगर मैं परपेचुअल इंजंक्शन देने के काबिल नहीं हूं, अगर सपोज कोर्ट फॉर वट एवर रीजन कैन नॉट ग्रांट द परपेचुअल इंजंक्शन, तो इंटरिम इंजंक्शन भी नहीं दिया जा सकता। सो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर परपेचुअल इंजंक्शन आप देने में सक्षम नहीं हो, या कोई भी कारण से आप सोचते हो कि मैं परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दे सकता, तो फिर इंटरलॉक्यूटरी, ये वाला जो टेम्पररी इंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 39 में, ये भी नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन कब नहीं दे सकते? तो सर, जहां मैं परपेचुअल परमानेंट इंजंक्शन नहीं दे सकता, वहां पे मैं टेम्पररी इंजंक्शन भी नहीं दे सकता। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अगला क्वेश्चन उठता है, हु कैन अप्लाई? ग्रांट ऑफ इंजंक्शन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? अब एक चीज याद रखना, इंजंक्शन के लिए सिर्फ जो पार्टी टू द सूट है वो ही अप्लाई कर सकती है। दैट मीन्स स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड टू आस्क फॉर ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शंस। अब एक क्वेश्चन जो आता है, जो प्रीलिम्स में आया हुआ है, क्या एक डिफेंडेंट इंजंक्शन मांग सकता है? व्हाई नॉट? अगर ऐसा मामला हो जहां डिफेंडेंट को लगता है कि हमने प्लेंटिव को रोकना है जब तक खत्म नहीं होता, तो वो डिफेंडेंट भी मांग सकता है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द प्रीलिम्स। कैन अ डिफेंडेंट आस्क अ टेम्पररी इंजंक्शन? यस, ये मामला आया था केरला हाईकोर्ट के सामने, एस अम्मो वर्सेस विजय। इस केस में 1995 केरला, in this case it was held that any party can apply for injunction including a defendant। अगर defendant को in the interest of justice he wants a temporary injunction against the plaintiff, कोई मनाही नहीं है। Okay, that's wonderful, Akanksha। Okay, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, नेक्स्ट, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम इन द मेंस। बहुत ध्यान देना इस पॉइंट पे क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
सब नाम नहीं आया जिसने भी पूछा, इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन एंड टेम्पररी इंजंक्शंस कैन बी टेकन एज अ सिमिलर थिंग। हम कई बार टेम्पररी इंजंक्शंस को इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन भी कहते हैं, एक ही चीज है, हम इनको दोनों नामों से पुकार सकते हैं। ओके, अब जो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल रहा हूं, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है और बहुत ध्यान देना, इसका मैं जजमेंट भी दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, पहले समझ लो पॉइंट क्या है। एक बार आपने टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया तो क्या माना जाए कि मेरा तो टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब मेरा स्ट्रांग है बड़ा केस, तो जी मेरे तो मेरिट्स हैं, सर ने मुझे, कोर्ट ने मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया तो मैं तो जीत गया। नो, ऑलवेज रिमेंबर दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दिस मैटर केम अप इन जय किशन वर्सेस ब्रिटोनेटिक्स, ये 1987 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें उन्होंने कहा कि मियरली बिकॉज किसी को हमने टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया, इट हैज नो बेयरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। इससे मेरिट्स नहीं ठीक होने वाले। ये नहीं सोचो कि मुझे टेम्पररी इंजंक्शन मिल गया तो मुझे आप परमानेंट इंजंक्शन कैसे नहीं दोगे। सो एक चीज याद रखना, there is no implication that in case you have got a temporary injunction, then it is paid based on merits. So एक चीज यहां से क्या निकलती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, कि टेम्परेरी इंजंक्शंस मेरिट्स पे नहीं दिए जाते, वो सिर्फ जस्टिस इक्विटी पे दिए जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो अगर ये नहीं है कि हमने मामला डिसाइड कर लिया है, ये तो पक्का इसके फेवर में जाएगा, तो चलो टेम्परेरी इंजंक्शन दे देते हैं। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्योंकि ये एग्जाम्स में आया हुआ है कि डज ग्रांट ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन इंप्लाई दैट द पार्टी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। नाउ वंस वी आर क्लियर ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ओके, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि किन किन चीजों पे हम टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकते हैं। अगर मैं टेम्पररी की बात करूं, एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मेंस में और बहुत 2-3 जगह प्रीलिम्स में आ गया, क्या मैं किसी के खिलाफ डाल सकता हूं एंटी सूट इंजंक्शन? कोई एक प्लेंटिफ है, वकील है, उसकी आदत है हर एक के खिलाफ सूट डालना, या मेरे खिलाफ वो जान के 10-12 सूट डाल चुका है, क्या मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि कोर्ट इसको रिस्ट्रिक्ट करे कि और सूट नहीं डालेगा फालतू में? अब प्लीज रिमेंबर, इसको कहते हैं एंटी सूट इंजंक्शन। एंटी सूट इंजंक्शन हो सकता है। ये मामला एक मैं जजमेंट बताऊंगा इसके अंदर, मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट लिमिटेड, 2003 Supreme Court. In this case, the Honorable Supreme Court held sometimes suits are registered merely to harass a person. In such cases, where it is prima facie clear that the plaintiff is acting only on merely to harass, in such cases, such anti-suit injunctions may be passed. Everybody clear? तो एंटी सूट इंजंक्शन क्या होते हैं, क्या उनको पास किया जा सकता है, क्या उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है? ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको क्लियर की। ओके, नो प्रॉब्लम्स। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है। सो प्लीज, नाउ दिस क्वेश्चन हैज अगेन कम इन द मेंस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ टेम्परेरी इंजंक्शन बी ग्रांटेड? इसका आंसर हमें मिलता है ऑर्डर 39 के रूल 1 में। रूल 1 में जब हम जाते हैं तो उसके अंदर 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मेंस का है, ध्यान रखना, पंजाब में आ सकता है, यूपी में आ सकता है, कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग अ टेम्परेरी इंजंक्शन। तो उसका आंसर हमें मिलता है रूल 1 में। इसके अंदर पहला, व्हाट आर द 5 ग्राउंड्स? पहला,
that there is danger that the disputed property may be wasted, damaged or alienated by any party to the suit. पहला कारण क्या हो सकता है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या कोई ना कोई उसको बर्बाद कर देगा. दूसरा, that the disputed property is in danger of being wrongfully sold. कोई डिक्री में, कोई और डिक्री में, एग्जीक्यूशन में गलत बिक जाएगी, रोक देंगे हम. तीसरा, that the defendant threatens or intends to dispose of his property by defrauding his creditors. डिफेंडेंट जो है वो चालाकी से बेचना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टी. चौथा, that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff. या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को गुंडे लेके बाहर फेंकने वाला है या और कोई इंजरी करने वाला है उसको. चौथा ग्राउंड हो गया. और पांचवा ग्राउंड, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोई और इंपॉर्टेंट कारण हो. So fifth ground is that grant of injunction is necessary in the interest of justice. Has everybody noted these 5 points? The grounds on which an interim temporary injunction can be granted. Now, I hope I'm clear on all these aspects. अब एक चीज पहले खास ख्याल रखना, एक और ग्राउंड हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं. ये आपको 5 ग्राउंड जो मैंने बताए ये तो रूल 1 में लिखे थे. एक ग्राउंड मैं आपको दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया. दिस इज के सीतारमन. दिस इज के सीतारमन. के सीताराम वर्सेस पापा अम्मा. दिस इज 2001 सुप्रीम कोर्ट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता कोर्ट की नजर में तो वहां इंजंक्शन कैसे दोगे. सो नेक्स्ट कॉज हम सुप्रीम कोर्ट के एंगल से लिख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया कि छठा कारण हो सकता है जहां कोर्ट को प्राइमा फेशी कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नजर नहीं आ रहा है तो वहां किस मुंह से आप टेम्पररी इंजंक्शन दोगे. एवरीबडी नाउ क्लियर? सबको क्लियर हो गया अभी तक? ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है. आई होप सब ने ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लिया होगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच अ टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी गिवन. अगला, अब जो एक अगला मेंस का क्वेश्चन 100 बार आ गया, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग टेम्पररी इंजंक्शंस. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच गवर्न ग्रांट ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन. किन प्रिंसिपल्स पे आप टेम्पररी इंजंक्शन दोगे. ये क्वेश्चन 15 नंबर का, 12 नंबर का 5-6 बार आ गया है. तो सबसे पहले एक दो जजमेंट्स लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जहां प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगा ब्लूम डेकोर वर्सेस सुभाष देसाई. दिस इज 1994 सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद एक और जजमेंट है मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास. दिस इज 1994 सुप्रीम कोर्ट. और एक और जजमेंट है मारिया स्क्वेरा वर्सेस इराज्मो स्क्वेरा. दिस इज 2012 सुप्रीम कोर्ट. इनमें से कोई भी एक याद हो जाए, आप वही लिखाना, जो भी एक याद कर लो वो काफी है. इन जजमेंट्स में जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि आपको अगर टेम्पररी इंजंक्शन देना है तो जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं. कौन से प्रिंसिपल्स हैं? मोटा मोटा 3 प्रिंसिपल्स हैं. पहला, वेदर द प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेशी केस. पहला, वेदर द प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेशी केस. दूसरा, whether balance of convenience is in the favor of plaintiff. दूसरा, whether the balance of convenience has
is in the favor of the plaintiff. And तीसरा, whether the plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for injunction is disallowed. तीसरा, whether plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for injunction is disallowed. I hope तीनों प्रिंसिपल्स आप सबने लिख लिए होंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं. Whether plaintiff has prima facie case. Second, whether balance of convenience is in the favor of plaintiff. तीसरा, whether plaintiff would suffer irreparable loss, injury, if his prayer for injunction is disallowed. अब इन तीनों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इनका मतलब क्या है. मैं बिफोर आई गो हेड, मैं अगेन कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कोट करना चाहूंगा. सोनू बाबू वर्सेस ड्रीम डेवलपर्स, 2009 Supreme Court. The above mentioned three principles are the governing principles of grant of temporary injunctions. ये जो मैंने तीन आपको अभी प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर दिस पर्पस. अब इसके अंदर प्लीज रिमेंबर, ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं. पहले हम अगेन मैं कोट करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह. दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, 1993 सुप्रीम कोर्ट. पहला मैं इसी जजमेंट को कोट करूंगा, इसी से शुरू करना आप लोग. द फ्रेजेस प्राइमा फेशी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल लॉस, ये जो तीन बेसिक वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स ऑफ विड्थ एंड इलास्टिसिटी. ये विड्थ और इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, इनका बहुत लंबा, इसको बहुत स्ट्रेच करके कोर्ट इसका डिसीजन ले सकता है. इसको हमने नैरो व्यू नहीं देना है, इसको हम ब्रॉड व्यू से देख सकते हैं. पहले डिस्कस करते हैं पहले वाला मामला जो है प्राइमा फेशी. सी, प्राइमा फेशी का मतलब क्या होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट, जब भी मैं कहता हूं प्राइमा फेशी, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ टू ऑब्टेन अ रिलीफ. जो मटेरियल मेरे सामने दिया गया है, अगर मैं उसको सरसरी नजर से देखता हूं तो मुझे लगता है इसको रिलीफ देना चाहिए. एक चीज हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मेरिट्स पे होना चाहिए. कोर्ट कई बार गलती क्या करती है कि सिंपथी पे दे देती है. बड़ा दुखी है जी पार्टी, दुखी या हार्डशिप इज नो ग्राउंड. तो एक बात हमेशा याद रखना, सिंपथी या हार्डशिप इज नो ग्राउंड. कोई ठोस सबूत होना चाहिए, कोई ठोस मैटर नजर आना चाहिए. इसको हम कहते हैं प्राइमा फेशी केस. क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया प्राइमा फेशी का मतलब क्या होता है? पार्टी आई रोती जा रही है, जी मेरा तो सत्यानाश हो गया. सॉरी, मुझे दिखाओ कि इसमें मेरिट्स क्या हैं. मेरिट्स अगर आपको प्राइमा फेशी नजर नहीं आ रहे तो कभी भी आपको इंजंक्शन नहीं ग्रांट करना. इस चीज के ऊपर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहां लिखा है कि अगर प्राइमा फेशी केस नहीं बनता इंजंक्शन का तो नहीं देना. सिर्फ सिंपथी में या हार्डशिप जो वो देख के आपको नहीं देना. क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, इररिपेरेबल इंजरी. सी, इररिपेरेबल इंजरी का मतलब क्या होता है? वो इंजरी जिसको कॉस्ट से कंपनसेट नहीं किया जा सकता. व्हाट इज इररिपेरेबल इंजरी? दैट इंजरी which cannot be compensated by costs. So please remember, all injuries in civil law can be compensated by cost. But suppose I cannot compensate you by cost, then it is called an irreparable injury. So, second point,
if I don't give you the temporary injunction, you will suffer an irreparable loss, irreparable injury. So please remember, any injury which can be compensated by damages is not an irreparable loss. Irreparable का मतलब क्या होता है? जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसकी मैं आपको कॉस्ट देके रिपेयर कर रहा हूं, तो वो रिपेयरेबल लॉस है। तो एक चीज और याद रखना, अगर मैंने टेम्पररी इंजंक्शन आपको ना दिया तो आपका लॉस ऐसा होगा जिसकी मैं कोई भरपाई नहीं कर सकता। एवरीबडी क्लियर ऑन द सेकंड पॉइंट? सबको क्लियर हो गया? ओके, भरपाई नहीं की जाए, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, राइट। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। सी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि अगर हम आपको ये दे दें, अगर मैं आपको टेम्परेरी इंजंक्शन दे दूं तो आपका फायदा ज्यादा है या आपका फायदा कम है। सो बेसिकली कंपैरिजन होता है, अगर टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया जाए तो आपका फायदा ज्यादा है कि डिफेंडेंट का फायदा ज्यादा है। तो नाउ अगर मैं आपको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं देता तो द हार्डशिप कॉज्ड टू द एप्लीकेंट shall be greater than the hardship caused to the opponent by grant of injunction। तो यानी कि अगर मैं आपको नहीं दे रहा, नॉट गिविंग, तो आपका लॉस ज्यादा है। यदि मैं दे देता हूं तो उसका जो लॉस है, तो अगर मैं देता हूं ग्रांट तो डिफेंडेंट का लॉस है, अगर मैं नहीं देता तो आपका लॉस है। तो किसका लॉस ज्यादा है? तो किसका लॉस ज्यादा होना चाहिए, आप बताओ। अगर मैं आपको देता हूं प्लेंटिफ को तो आपका फायदा या डिफेंडेंट का लॉस है, और अगर मैं नहीं देता तो डिफेंडेंट को फायदा है। तो किसका फायदा ज्यादा वे आप करोगे। सो प्लीज रिमेंबर, इसको जब हम फायदे को बैलेंस में वे करते हैं, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। किसके फेवर में होनी चाहिए? एप्लीकेंट के डिफेंडेंट? एप्लीकेंट के फेवर में। समझ गए सारे? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? सो एप्लीकेंट के फेवर में बैलेंस। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस? इस पे शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं, लिख लो जल्दी से। द टर्म बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मीन्स that the hardship caused to the applicant by refusal of injunction shall be greater than the hardship caused to the opponent by grant of injunction। ये इस पे शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। यूपी में आ सकता है, पंजाब में आ सकता है, जो अभी मेंस आ रहा है, ध्यान रखना। इसीलिए हम इसको एक चीज और भी कहते हैं, कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस। इसको हम एक वर्ड और भी क्या कहते हैं? कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस। तो कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस किसके फेवर में होना चाहिए? नेचुरली जो इनकन्वीनियंस किसके फेवर में होना चाहिए? नेचुरली जिसके खिलाफ जा रहा है। इज एवरीबडी क्लियर? सो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है कि अगर मैं प्लेंटिफ को दे दूं टेम्पररी इंजंक्शन तो नुकसान है डिफेंडेंट का, अगर ना दूं तो नुकसान है प्लेंटिफ का। तो किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है? तो ज्यादा नुकसान डिफेंडेंट का होना चाहिए, ना कि प्लेंटिफ का। क्लियर हो गया एवरीबडी? साक्षी क्लियर हो गया? सो प्लीज रिमेंबर, the balance of convenience lies in favor of the party which is to be inconvenienced more। So the balance of convenience lies in favor of that party जिसका inconvenience ज्यादा है। क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी क्लियर नाउ? तो अब आपको तीनों रूल्स क्लियर हो गए? तीनों रूल्स क्लियर हो गए? अच्छा, अब ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जाम का 15 नंबर का मेंस का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने एक चौथा और ग्राउंड दे दिया
तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा एक ग्राउंड जो किताबों में नहीं होता वो भी देख के आते हैं। और वो चौथा पहला ग्राउंड क्या था? प्राइमा फेशी केस बनता है। दूसरा ग्राउंड क्या था हमारा? व्हाट वाज द सेकंड ग्राउंड? इररिपेरेबल इंजरी। तीसरा ग्राउंड क्या था? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। चौथा ग्राउंड, ये चौथा ग्राउंड हमें दिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रभजोत सिंह वर्सेस भगवंत सिंह 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा मामला है जो पब्लिक से डील करता है तो पब्लिक इंटरेस्ट पे इसका असर क्या होगा। अगर हम इंजंक्शन देते हैं या नहीं देते तो इसका असर पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या होगा। ये चौथा एक मामला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो फोर्थ ग्राउंड वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन? ये चीजें किताबों में नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं जो दे रहा हूं इनको अच्छी तरह नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन और उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये क्वेश्चन उठा कि जो अभी हमने प्रिंसिपल्स बताए हैं क्या ये एग्जॉस्टिव है? क्या ये 3 प्रिंसिपल्स एग्जॉस्टिव है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, एम गुरुदास वर्सेस रस रंजन। This is 2006 Supreme Court. In this judgment, the matter came up कि क्या ये 3 प्रिंसिपल जो भी हमने बात की है ना, प्राइमा फेशी केस, इररिपेरेबल इंजरी और ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, क्या ये एग्जॉस्टिव है? They said no. और भी कारण हो सकते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस के, जैसे कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। आप कोर्ट के पास क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आ रहे, यू आर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम द कोर्ट, चलो जी इंजंक्शन दे देंगे। इसके बाद सीरियसनेस ऑफ द क्वेश्चन टू बी सेटल्ड, कितना मामला कितना नुकसान हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे, कॉन्डक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, डिले कितनी देर बाद वो मांग रहा है, और चीजें भी हो सकती हैं। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस आंसर नाउ? सो प्लीज रिमेंबर, अब इज एवरीबडी क्लियर? तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? 3 प्रिंसिपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, चौथा पब्लिक को डील करता है, और 5वां ये एग्जॉस्टिव नहीं है। कुछ भी अगर जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस में आता है उसको आप ग्राउंड बना सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या डिले का असर होता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में। क्या टेम्परेरी इंजंक्शन मना हो सकते हैं कि आप बहुत देर बाद आए हमारे पास? अगर कोई पार्टी सोती रहे अपनी राइट्स पे, क्या उसको राइट मिलना चाहिए? ये मामला आया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रिलीफ ऑफ इंजंक्शन इज एन इक्विटेबल रिलीफ एंड प्लेंटिफ्स हु आर नेग्लिजेंट और who sleep over their rights are not entitled to any equitable reliefs। यानी कि अगर कोई भी पार्टी अपने रिलीफ के बारे में नेग्लिजेंट है या सोती रहती है तो फिर भूल जाओ, कोई आपको जो रिलीफ इक्विटी पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस्ड है, वो नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो गया एवरीबडी क्लियर? यस रोहित, परफेक्टली राइट। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन उठता है, टेम्परेरी इंजंक्शन की लाइफ कितनी होती है? व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ टेम्परेरी इंजंक्शन? सो याद रखना, a temporary injunction may be granted till the suit is disposed of or till further orders of the court। कोर्ट अगर कहती है 3 महीने तक, 6 महीने तक, या जो भी कारण। सो एक चीज हमेशा याद रखना, डिक्री पास होने से पहले आप पूरा टाइम रख लो, कुछ महीने के लिए रख लो, ये कोर्ट की मर्जी है। एक बार डिक्री पास हो गई तो फिर याद रखना फर्दर टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आ गया, प्लीज गलत मत जाना। सो दीज ऑर्डर्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन सर्वाइव ओनली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। सबको क्लियर हो गया अभी तक पॉइंट्स? एवरीबडी क्लियर?
सबको क्लियर हो गया? ओके। अब दो मैं इंजंक्शन की बात करना चाहूंगा, दो इंजंक्शंस की बात करना चाहूंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं. What are Mareva injunctions and what are Anton Pillar injunctions? अब ये दो इंजंक्शंस क्या हैं? नाउ प्लीज रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इंजंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया है. मरेवा इंजंक्शन वो होते हैं जहां पे हम डिफेंडेंट को ये आदेश देते हैं कि तुम कोई स्पेसिफिक एसेट्स यहां से नहीं हटाओगे, तुम ये सामान नहीं हटाओगे. तो जहां हम डिफेंडेंट को मना कर देते हैं कि तुम कोई भी सामान यहां से नहीं हटाओगे, उसको कहते हैं मरेवा इंजंक्शन. ये एक्चुअली क्या हुआ, ये 1975 का एक इंग्लिश लॉ था, वहां से आया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया बाय द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1981. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? मरेवा इंजंक्शन. दूसरा होता है एंटन पिलर इंजंक्शन. सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट इज मरेवा इंजंक्शन. तो मरेवा इंजंक्शन क्या होते हैं कि डिफेंडेंट को रोक देते हैं कि तुम ये सामान यहां से नहीं उठाओगे. सपोज कोई सामान है, वही अंडर प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कि ये वाला सामान आप नहीं उठाओगे, हम आपको रोक देते हैं, उसको कहते हैं मरेवा इंजंक्शन. और अगर अब हम आते हैं एंटन पिलर. एंटन पिलर भी इंग्लिश लॉ से आया है, 1976 का एक इंग्लिश लॉ है, उससे आता है. उसमें क्या होता है, हम एक एंटन पिलर इंजंक्शन क्या होता है कि आप किसी को आदेश देते हो कि आप जाके वहां पे फोटोग्राफी करके ले आओ, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लो या अपनी कस्टडी में ले लो सब कुछ. तो जहां पे आप किसी पार्टी को अलाउ करते हो कि उसकी दूसरे की प्रॉपर्टी में जाके इंस्पेक्शन कर लो, फोटोग्राफी कर लो, कस्टडी ले लो कोई चीजों की, उसको कहते हैं एंटन पिलर इंजंक्शन. अब एंटन पिलर इंजंक्शन भी हमारे ऑर्डर 39 में है. ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है इन द प्रीलिम्स कि कौन सा इंजंक्शन, इंग्लिश इंजंक्शन ऑर्डर 39 में है. सो याद रखना, जब हम रूल 7 में आते हैं तो उसके अंदर मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये क्या है? ये एंटन पिलर इंजंक्शन है. समझ गए सारे? सारे इसको फेल हो जाते हैं इस पॉइंट पे क्योंकि किसी को समझ नहीं आती. हाँ, यस सना, बिल्कुल ठीक बात है. इज एवरीबॉडी क्लियर? सबको क्लियर हो गया? सो रूल 7 में जो जो क्लियर कर रहा है वो है एंटन पिलर इंजंक्शन. एवरीबॉडी क्लियर? अभी तक सबको क्लियर? किसी को कोई शक अभी तक? सारे स्टूडेंट में से किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक जितना हमने डिस्कस किया सारा क्लियर हो गया. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, कितने टाइप के इंजंक्शन है, दूसरा इंजंक्शन की ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, मेरिट्स पे नहीं होता, कब तक रुकता है, कब तक रहेगा. फिर हमने इसके प्रिंसिपल्स डिस्कस किए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं कोई भी टेम्पररी इंजंक्शन देने के. चलिए अब हम आते हैं, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन. व्हाट अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शन? क्या हम टेम्पररी इंजंक्शन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. मैं अपने किराएदार को बाहर निकालना चाहता हूं और मैंने जैसे ही देखा कोर्ट की छुट्टियां आ गई, होली आ गई, छुट्टियां, कोर्ट बंद है 10-12 दिन के लिए, मैंने उठा के उसका सामान बाहर फेंक दिया. अब क्या कोर्ट मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है कि जब तक तुम्हारा केस डिसाइड नहीं होता वापस बुलाओ, वापस रखो किराएदार को? आंसर इज यस. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैंडेटरी इंजंक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैंडेटरी इंजंक्शन. समझ गए सारे? सो टेम्परेरी मैंडेटरी इंजंक्शन का कोई लॉ है क्या? बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दोराब वार्डन वर्सेस कूमी वार्डन 1990 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे पूरा लॉ दिया गया रिगार्डिंग इंटरलॉक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शंस. तो बेसिकली इनका
इंटरलोक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन कब दिए जाएंगे? इफ आई वाज टू कोट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दोराब वार्डन, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, टू प्रिजर्व और रिस्टोर द स्टेटस क्यू, जो लास्ट अनकंटेस्टेड स्टेटस था उसका स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, टू कंपेल द अनडूइंग ऑफ दोज एक्ट्स जो इलीगली हुए हैं, उन एक्ट्स को ठीक करना जो इलीगली आपने कर लिए, मौके का फायदा उठा लिया। थर्डली, टू रेस्टोर व्हाट वाज रॉन्गफुली टेकन अवे बाय द फ्रॉम द कंप्लेनिंग पार्टी। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कोई चीज ले ली गई है गलत तरीके से, तो आपको रेस्टोर करना। ये 3 बेसिक रीजंस हैं टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शन के, और ये हमें कहां से मिलते हैं? इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। इज एवरीबडी क्लियर? मैंडेटरी इंजंक्शन पे क्लियर हो गया सबको? एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरा, जल्दी से, बहुत ध्यान देना प्लीज। एक क्वेश्चन उठता है, आपने अपील दे दी, सॉरी, आपने इंजंक्शन दे दिया, क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है? ये क्वेश्चन 100 बार आ गया एग्जाम में। सो प्लीज रिमेंबर, टेम्परेरी इंजंक्शन के खिलाफ अपील, इट्स एन ऑर्डर, इट इज नॉट अ डिक्री। तो क्या इस ऑर्डर के खिलाफ अपील है? ऑर्डर 43 रूल 1 आर अलाउज एन अपील अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शंस। क्लियर हो गया? एवरीबडी क्लियर? ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, अब एक बात और बताओ मुझे, एक बात और बताओ श्वेता बेटा, यू हैव टू, टाइम कम होता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, आप इसके बाद वापस मोड़ के देख लेना। ओके, अब एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, क्या रिवीजन होती है? आपने एक टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया, क्या उसका अपील है? है। कहां लिखा है? ऑर्डर 43 1 आर में। अब क्या रिवीजन होती है? नो, नो। ये हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना। क्यों? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का रिवीजन ना सीआरपीसी में है ना सीपीसी में है। समझ गए सारे? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का रिवीजन नहीं होता। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का ना सीपीसी में ना सीआरपीसी में। तो ये क्या है? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होते हैं? जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं। तो सेम कोर्ट उसको ठीक कर सकता है, इसीलिए इसका रिवीजन नहीं होता। क्या सारे समझ गए इस पॉइंट को? तो अभी मेरा जल्दी से क्वेश्चन आगा, दोबारा मैं पूछ रहा हूं, क्या टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर अपीलेबल है? है। कहां है? ऑर्डर 43 1 रूल 1 के आर में। क्या ये रिवाइजेबल है? नहीं रिवाइजेबल। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर रिवाइजेबल नहीं होता। ये चीज किसने क्लियर की? अनिल काक वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, 2007 सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताओ, अगर ये रिवाइजेबल नहीं है तो मेरे, और अगर सपोज ये बाई चांस अपीलेबल ना हो तो मैं क्या करूं? तो याद रखना, जहां रिवीजन नहीं होती वहां आर्टिकल 227 एक ब्रह्मास्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे हाईकोर्ट कोई भी मैटर इंक्लूडिंग इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स टेक अप कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यस हरिंदर, नेचुरली अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे एक टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर का, तो कैसे होगा? आप अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इंजंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन। आपने ऑर्डर पास कर दिया, वो नहीं मानता, तो वो कैसे होगा? समझ गया ना मेरी बात? चलिए, इज एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़ूं मैं जल्दी से। दो तरह के हमारे इंजंक्शंस हैं ऑर्डर 39 में। पहला था इंजंक्शंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, और अब आ रहा है हमारे दूसरे इंजंक्शंस जो रूल 2 में है। रूल 2 डील करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
और एनी इंजरी। सो याद रखना, और प्रॉपर्टी के मामले रूल 1 में जाते हैं और बाकी सारे मामले इंजरी के या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल 2 में जाते हैं। एवरीबडी क्लियर? अब एक चीज याद रखना, इंजरी क्या होती है? कुछ भी हो सकती है। आपने मुझे मेरे जात से बाहर निकाल दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन। आपने मुझे आपने मेरा एक क्लब में एंट्री बंद कर दी, टेम्परेरी इंजंक्शन। आप एक फ्लैट बेचने जा रहे हो जहां की सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, टेम्परेरी इंजंक्शन। समझ गए सारे? एवरीबडी क्लियर? सिमिलरली जहां पे आप कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, आप कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो क्या करोगे? आपको पता है ये तोड़ने जा रहा है, आप गए, आपने कहा आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे, जा मैं नहीं करता, ठीक है, मैं जाता हूं कोर्ट में, तो मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन ला सकता हूं। सो क्लियर हो गया? अब जब भी आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन, सो कहीं भी लाओ टेम्परेरी इंजंक्शन, प्रिंसिपल्स कौन से हैं? वही प्रिंसिपल जो हमने पहले पढ़ी है, प्राइमा फेशी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल लॉस। समझ गए सारे? एवरीबडी क्लियर? अभी जल्दी से लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं 2A। जल्दी से, टाइम मेरे पास बहुत 2-3 मिनट बचे हैं, ध्यान रखते। अगर आपने ब्रीच किया, आपने, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, एग्जाम में आएगा, लिख लो मेरे से, आज जो मैंने लेक्चर दिया एग्जाम में आएगा, कुछ ना कुछ आएगा इसमें से। अगर आपने ब्रीच कर दिया, आपने कहा जी कौन है तू, मैं बड़े देखे तेरे जैसे कोर्ट वाले, तो फिर मैं क्या करूंगा? सो याद रखना, उसकी प्यूनिटिव मेजर्स हैं 2A में। तो मैं क्या करूंगा? आई मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन टू बी अटैच। तो ठीक है, मैं तेरी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा हूं, एंड, और नहीं कह रहा हूं, एंड कह रहा हूं, प्लस तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हें सिविल जेल में डाल दूंगा फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months। ये 100 बार क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में, मेंस में, गलत मत जाना। सो अगर मैं आपका टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर रूल 1 में या रूल 2 में नहीं मानता, तो क्या अंजाम होने वाला है मेरा? आप मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो और मुझे सिविल प्रिजन में 3 महीने तक के लिए अंदर कर सकते हो। चलो जी, मैंने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, आप कहते हो कर ले अटैच, 1 साल बीत गया, हम ऐसे तो आप कहोगे ठीक है कर ले, कर ले, ठीक है, 1 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो याद रखना, कोई भी अगर आपने अटैचमेंट कर लिया और 1 साल तक फिर भी आप नहीं माने, आप बाज नहीं आए, आपने डिसोबीडियंस कर दिया या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्रॉपर्टी आपकी बेच देंगे और उसमें से कंपनसेशन दे देंगे हम एग्रीव्ड पार्टी को। आपका घर बेच के उसका, वो कहते हैं कंपनसेशन 10 लाख बनता है, 10 लाख रुपए उसका देंगे। आपका घर बेचा हमने 12 लाख का, 2 लाख कहेंगे ले वापस ले जा तू, 10 लाख दे देंगे पार्टी को। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर ऑन द प्यूनिटिव एस्पेक्ट्स कि क्या किया जाएगा? अब एक चीज और है, अब इतना प्यूनिटिव है तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इंजंक्शन देने से पहले नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। यानी कि आपको पहले, इंजंक्शन देने से पहले नोटिस देना है दूसरी पार्टी को, एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी। अगर आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, कॉल्ड एक्स पार्टे इंजंक्शन, तो फिर आपको पूरी वो सावधानियां बरतनी है, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस लेड डाउन इन रूल 3 पूरे करने पड़ेंगे। तो कायदे से आप एक्स पार्टे इंजंक्शन नहीं दोगे। अगर दे रहे हो, कोई बहुत ही एक्सट्रीम मामला है, तो फिर याद रखना रूल 3 में सेफ गार्ड दिए गए हैं, तो सेफ गार्ड्स आपको पूरे करने हैं। और एक चीज और, 3A में जब आप आते हो, तो ऐसे मामलों में जब भी आपने कभी भी बिना किसी नोटिस के
एक तरफा टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया तो उसको आपको जल्दी से जल्दी यानी कि 30 दिन के अंदर मैटर को खत्म करना पड़ेगा। समझ गए सेफगार्ड्स? तो सेफगार्ड क्या है? टेम्पररी इंजंक्शन देने से पहले दूसरी पार्टी को नोटिस दोगे। अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम मामला है तो फिर एक्स पार्टी आप इंजंक्शन दे सकते हो, पर फिर जो सेफगार्ड दिए गए हैं रूल 3 में और रूल 3A में वो पूरे करने पड़ेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। सबको क्लियर हो गया सारा पूरा का पूरा लॉ? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आज अपने नोट्स बना लेना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। टेक माय वर्ड, these questions are definitely going to come in your mains। हर साल आते हैं इंजंक्शंस पे। मैंने बर्ड्स आई व्यू दिया है जल्दी से टोटल टेम्पररी इंजंक्शंस का। सो थैंक यू एवरीबॉडी। यस वर्षा, व्हाट इज योर डाउट? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेम्पररी इंजंक्शन गिवन बेसिस कैन नॉट बी गिवन। जहां पे परपेचुअल इंजंक्शन आप दे ही नहीं सकते। सपोज आपके कब्जे में ही नहीं है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने कह दिया आपका कब्जा नहीं है, रिकॉर्ड पे आपका कब्जा नहीं है, आप इंजंक्शन मांग रहे हो, तो कैसे मिलेगा? ओके देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी। मेक योर नोट्स प्लीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।